ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਗਾਇਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਢਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਵੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 3 ਵਾਰ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ। ਸਰ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ बड़ा प्रशंसक है जी। हाँ, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और बड़ा अच्छा मेरे लिए तो ये एक बड़ा मौका है। ये गुरुओं की धरती है, संतों की धरती है, देवभूमि है और देश के अन्नदाता की धरती है, देश के रक्षकों, देश निर्माताओं की धरती है, बहादुरों की धरती है किसी रूप से भी देखिए। और पंजाब की खिदमत कांग्रेस के माध्यम से यदि मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। और मैं कोशिश करूँगा कि जो अच्छा काम हमारी गवर्नमेंट कर रही है ये आगे भी कंटिन्यू रहे, अगले 5 साल भी कंटिन्यू रहे, उसके लिए कांग्रेस को मजबूत बनाया जाए। ਰਾਵਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ हालात कितने माड़े ने? देखिए, इस समय तो जो हमारी और सब विधायकों की, हमारे मंत्रीगणों की भी, कांग्रेस वर्कर भी जो मिल रहा है, एक ही चिंता है, वो है कि ये क्या होगा, खेती का क्या होगा, किसानों का, हमारी किसानी का क्या होगा। क्योंकि यहाँ तो सब किसानी हैं, करीब करीब 80% लोग, और जो बाकी भी हैं वो भी खेती पर निर्भर हैं। यहाँ की पूरी इकोनॉमी उसी पर निर्भर करती है, तो ये बड़ी चिंता है। और मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर ने इन हालात में हिम्मत बांधने का काम किया है। और मैं तो समझता हूँ कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब का पैसा दबा रखा है, और यदि ऐसी हालात और उसमें किसानों के साथ ये सब होता तो मैं बड़ा परेशान हो जाता यदि उत्तराखंड में ये होता। तो यहाँ मगर चीफ मिनिस्टर कहते नहीं मैं इससे रास्ता निकालूंगा, और उन्होंने किसानों से भी कहा है कि दूसरी चिंता करने की गल नहीं है, मैं हूँ, मैं कुछ करूँगा। और मैं उनके माध्यम से उनकी हिम्मत देख करके देश भर के किसानों से भी कह रहा हूँ कि वी हैव ए फार्मर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। वो कुछ न कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे जिससे इन जो काले बिल पास किए हैं, जो बिल क्या है, अब तो कानून है, जो काले कानून तीनों, इसका इनके इम्पैक्ट से, इनके बैड इम्पैक्ट से जो है किसान को बचाया जा सके। ਰਾਵਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। किस तरीके की जी गलबात कैप्टन साहब के नाल हुई है इस मुद्दे पर?
कैप्टन साहब ने इससे भी आगे कुछ कदम उठाया है। कल लगभग 6 घंटा हम ऑफिसर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, लीगल पर्सनैलिटीज़ के साथ कंसल्ट करते रहे कि कोई क्या तरीका हम ऐसा निकाल सकते हैं जिससे एक काले कानूनों के दुष्प्रभाव से एटलीस्ट खेती को बचाया जा सके, धान को बचाया जा सके, गेहूं को बचाया जा सके, किसान की मेहनत को बचाया जा सके। तो बाकी जो आपने कहा कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे, मगर उसमें कुछ इफ एंड बट्स भी हैं। जिस तरीके के हालात हम देख रहे हैं देश में, अलग अलग न्यायिक निर्णयों के बाद थोड़ा सा ये है कि जब तक कोई श्योर ही ऐसा वो ना हो तो मूव किया जाए न किया जाए। दूसरा रास्ता किसानों ने खुद सजाया कि साहब आप विधानसभा का इजलास बुलाओ और एक प्रस्ताव कर दो। हम देख रहे हैं कि प्रस्ताव पास करके काम चलेगा या कानून बिल पेश करके काम चलेगा, हम वो काम भी करेंगे। और जैसे कि उन्होंने कहा आगे जैसा मैंने आपसे कहा कि हम और भी दूसरे लीगल ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, मगर मैं पंजाब के किसानों से भी और पंजाब के किसानों के माध्यम से देश के किसानों से भी कहना चाहता हूँ, वी हैव ए चीफ मिनिस्टर इन अमरिंदर सिंह जो किसानों के लिए इज़ वेरी मच कंसर्न। वो पंजाब के किसानों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसका भी रास्ता ढूंढ रहे हैं और देश के लिए भी वो एक मॉडल बन सके वो देख रहे हैं। और मैं अपने कांग्रेस प्रेसिडेंट का भी बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने भी कुछ रास्ता सुझाया है। एक चिट्ठी उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स को लिखी है और हम लोगों को कहा है कि उस पर काम करो। तो कोई न कोई तरीका हम निकालना चाहते हैं ताकि इन 3 विधेयकों के इफेक्ट को या तो न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, बैड इफेक्ट उसको, या जो है कम से कम मिनिमाइज तो कर दिया जाए बैड इफेक्ट को जो है। तो ये मैं किसानों तक कहना चाहता हूँ कि हम ये करेंगे, हम उसके लिए सब कुछ पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी सिंसियरिटी के साथ लगाएंगे। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ। देखिए, कोविड का खतरा है और सावधानी बरतनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी चाहिए, मास्क भी लगाना चाहिए। लेकिन जब पेड़ दी गल होती है, परिवार दी सुरक्षा की गल होती है, किसान की सुरक्षा सारी जो है खेती के चारों तरफ है। और आखिर ये पॉलिटिकल पार्टी भी तो किसानों से बनी है। अब पंजाब कांग्रेस तो पूरी तरीके से किसान पार्टी है। तो ऐसे में हम उस कभी कभी जो है व्यक्तिगत सुरक्षा का मामला जो है वो जो बड़ा कंसर्न है उससे ढक जा रहा है। और फिर भी हमने अपनी पार्टी के लोगों से कहा है कि मैक्सिमम कोशिश करिए कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड से बचा जा सके, उसको करना है। ਰਾਵਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ 33 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? इसीलिए उन्होंने जो है ऐसे ही एरिया में निकाला होगा जहाँ किसान के गुस्से को उनको न झेलना पड़े। और हो सकता है वहाँ किसान हो ही नहीं और रैली निकालने वाले भी वो लोग हों जो जिनका किसानी से कोई मतलब ना हो। जिसका दूर दूर से भी खेती और किसानी से मतलब है वो इन बिलों के समर्थन में आ ही नहीं सकता है। कारण बिल्कुल साफ है, दिन के उजाले की तरीके से दिखाई दे रहा है कि इन बिलों के सामूहिक प्रभाव से कुछ चीज़ें बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी। एक तो एमएसपी तंत्र नष्ट हो जाएगा, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, जिसको बड़ी अरमानों से किसानों ने प्राप्त किया है। पूरा मंडी सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा,
एक बार वो ध्वस्त हो गया तो फिर एमएसपी पर उसका भी असर पड़ेगा, एमएसपी ध्वस्त हो गया तो मंडी सिस्टम पर असर पड़ेगा। एफसीआई ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिर जब सरकारी मूल्य निर्धारित नहीं होंगे तो सरकारी खरीद कहाँ से होगी और कौन बेच रहा है सरकारी उसको, तो वो क्यों करेंगे। तो एफसीआई ख़त्म हो जाएगा। एफसीआई ख़त्म हो जाएगा तो जो सस्ता गल्ला वितरण प्रणाली है, जो पीडीएस सिस्टम है, दुनिया में सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा है गरीबों के लिए, वो सब खत्म हो जाएगी। पीडीएस सिस्टम कहाँ से अनाज मिलेगा? ऐसा तो है नहीं कि हम अडानी से खरीदें और अंबानी से खरीदें फिर सस्ते गले की दुकानों में जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। तो जो अभी तक सरकारी खरीद थी उसी पर सारा जो है सस्ते गले की दुकानों का तंत्र निर्भर करता था। तो ये चीज़ें जो एक दूसरे को सपोर्ट करती थी, उन सबको ये 3 बिल ख़त्म कर दे रहे हैं। और न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी के तर्ज में ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये हो सकता है कि कोई 100-200 एकड़ 400 एकड़ का किसान सस्टेन कर जाए, लेकिन जो 2 एकड़ का 1 एकड़ का किसान है वो यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के उसमें आया तो वो किसान कैसे खड़ा हो पाएगा? अडानी जैसे लोगों कॉर्पोरेट हाउसेस के चक्कर में यदि उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो कोर्ट में कहाँ से जा पाएगा? और कोर्ट में जाएगा तो जो खेत है वो भी बिक जाएगा। सर, जदों कांग्रेस सरकार, किसान इस खतरे को समझ रहा है कि मेरी खेती भी खतरे में है, जो मेरा गर्व है, और मैंने जो कुछ अब तक हासिल किया है वो भी सब खतरे में पड़ गया है। तो इसलिए किसान विरोध पर तुला हुआ। इस समय तो किसान लीडरशिप लीड कर रहा है। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? देखिए, हमारी बहन ने बहुत कुछ काम करके गई है इस क्षेत्र में, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं, हमारे साथी हैं, वो हालात की गंभीरता को समझते हैं। इस समय सब जानते हैं कि पहली प्रायोरिटी, बल्कि ओनली प्रायोरिटी के रूप में यह है किसान और खेती को कैसे बचाया जाए, तो उस पर पूरी ताकत लगाएंगे। फिर दूसरी बात यह है कि कोविड का मुकाबला करना है, केंद्र सरकार मददगार नहीं है, तो किस तरीके से जो है कोविड के खिलाफ जो अभियान है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। तो हमारे लिए मतभेदों के लिए टाइम नहीं है। और लेकिन जिन कानूनों से मतभेद हैं, कुछ सवाल लोगों ने, हमारे साथियों ने उठाए हैं, मैं उन सवालों के मेरिट पर बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ इज कंसर्न, जो बातें उन्होंने उठाई हैं और उनको किया जा रहा है। कुछ मामलों में बड़े स्ट्रॉन्ग एक्शन इनिशिएट भी कर दिए गए हैं, मगर परिणाम आने में समय लगता है। तो जो कुछ भी करेंगे हमारे साथी जो है कहेंगे, वो पार्टी के फोरम में कहेंगे, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो कम्युनिकेशन गैप है कहीं हो जाता है कभी कभी, उसको दूर किया जाए। मेरी बड़ी सतर्क निगाह रहेगी कि हमारे लोगों के बीच में संवादहीनता न रहे, बल्कि संवाद बने, और उसके लिए मैं उपलब्ध रहूँगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੂਲੋ ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। देखिए,
शमशेर सिंह दुल्लो हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्रताप भी हमारे प्रेसिडेंट हैं, आज भी हमारे इम्पोर्टेंट नेता हैं। और मैं उन्होंने जो बातें उठाई हैं मैं उनके मेरिट को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात की चिंता ज़रूर है कि प्लेटफॉर्म उसका उचित होना चाहिए, क्योंकि वो तो पार्टी अध्यक्ष के पास भी पहुंच सकते हैं। हरीश रावत की शिकायत करने के लिए प्रताप बाजवा जी को कहीं किसी अखबार वाले से गल करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो कांग्रेस प्रेसिडेंट से गल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए, अपनी एक्सेस जो लीडरशिप तक है उसका इस्तेमाल करते हुए उनके सामने इन बातों को लाएंगे और समय देंगे समाधान के लिए, क्योंकि ये सब ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता समय के साथ टैकल करना पड़ता है। तो मैंने उनसे जब मिले थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हम और ख़ुद कहा था कि हम जानते हैं कि ये कोई 1-2 महीने में हल होने वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इन पर जो है एक्शन इनिशिएट होगा इन चीज़ों पर। इनफैक्ट दे आर ऑल्सो इक्वली कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पार्टी। उनका कहना है कि इन चीज़ों को यदि नहीं करेंगे तो पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। तो यदि मैं ये कहूँ कि आई एम ओनली कंसर्न अबाउट पार्टी तो ये बहुत गलत होगा। दे आर इक्वली कंसर्न फॉर द पार्टी, बस ओनली डिफरेंस बिटवीन उनके कहने में और मेरी वर्किंग मेथड में वो है कि कहाँ आप कह रहे हैं और किस समय कह रहे हैं। मेरा मानना है ये समय ज़रा उचित नहीं है, और दूसरा जो है जहाँ कहा जा रहा है वो स्थान उचित नहीं है। वो सीनियर लोग हैं, डिसाइड करेंगे। सर, नवजोत ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਂਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋਗੋ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾत ਕੀਤੀ है। ऐसा देखिए, जब आप किसानों के आंदोलन में जा रहे हैं तो मैं वहाँ अपना झंडा लेके थोड़ी जाऊँगा, मेरा मैं थोड़ी कर रहा हूँ। तो वो किसानों का आंदोलन था, उनमें गए तो वहाँ उनसे कहना कि नवजोत सिद्धू जी क्यों नहीं झंडा लेके गए, वो तो अन्याय होगा। और जब कांग्रेस का आंदोलन होगा तो उसमें दोनों हाथों पर झंडा पकड़े हुए होगा, आप चिंता न करिए। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई किसानों का इतना बड़ा मामला, साडा सिद्धू कितने है जी, हैं निक नहीं रहा। तो वो गए, अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे भी जो है देखो, सिद्धू जब समय पुकार रहा हो चुप कैसे रह सकता है, वो आएगा। और इस समय कांग्रेस के सामने चुनौती है, पंजाब की सरकार के सामने चुनौती है, पंजाब के सामने चुनौती है, और सबसे बड़ी बात है देश के अन्नदाता के सामने चुनौती है। तो वो अपने सारे कर्तव्यों को देख करके आप ये देखेंगे एज ए ट्रू सोल्जर ऑफ द कांग्रेस वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਉਹ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ उनके बहुत हिमायती हो और सानू भी उनका बहुत हिमायती है। दोनों आप भी वाहेगुरु से ज़रा प्रार्थना करो, मैं भी कर रहा हूँ कि वो हमारे सुझाव को मान लें, सब रास्ता निकल आएगा। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਹਲੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ अपना? देखिए, अकाली दल तो आपने बहुत सही कहा, उन्हें उस दिन अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार दी जिस दिन मंत्रिमंडल में ऑर्डिनेंस पास हुए और उन्होंने समर्थन कर दिया। तो पंजाब की जनता उनको इसके लिए माफ़ नहीं करने जा रही है। पहले ही बड़े पाप किए थे उन्होंने, और अब उसमें जो है और ये महापाप कर दिया।
फिर दूसरा महापाप ये कर दिया कि 3-4 महीने ताली बजाते रहे कि बहुत बढ़िया ऑर्डिनेंस हैं, किसान का कल्याण हो जाएगा। जब पंजाब का किसान सड़क पर आ गया तो उनको लगा कि यार अब तो हम तो घुस भी नहीं पाएंगे पंजाब में, तो उन्होंने जो है एक टेम्परेरी पास के तौर पर इसको इस्तेमाल किया। बल्कि यदि यहाँ से बड़ा हल्ला गुल्ला नहीं मचता कि भाई तुम कैसे ये कर रहे हो, तुम अभी एनडीए में क्यों हो, तो एनडीए भी नहीं छोड़ते। कुछ दिनों के बाद जब मामला ठंडा हो जाता तो मोदी जी से कहते हम तो तुम्हारे पुराने साथी हैं, हमको फिर चले जाते मंत्रिमंडल में। और अब भी मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी और अकाली दल का मिला जुला खेल है ये। हाँ, और बीजेपी जो है एक तरफ अकाली दल से कहेगी कि तुम किसानों के वोटों को काटो, तुम इधर काम करो, और दूसरी तरफ दूसरे अकाली दल को भी प्रॉप अप करेगी, उनको कुछ करके ताकि अपनी ताकत को वो किया जाए। तो ये सब मुझको बीजेपी का षड्यंत्र लगता है। सरकार रिपीट करेगी जी थोड़ी? और जो नवी कुछ पार्टियां हैं उनको अभी पंजाब जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट को समझने की वो चाहिए। और किसी के बाद देखा, हमको हमारी सरकार इसलिए रिपीट करेगी कि हमारे पास गाइड फिलोसफर जो भी कह लीजिए, इस समय चीफ मिनिस्टर के तौर पर अमरिंदर सिंह जैसा व्यक्ति है। तो पंजाब को समझने वाला कौन है दूसरा व्यक्ति ऐसा? प्रकाश सिंह बादल थे, लेकिन वो बिल्कुल हाइबरनेशन में चले गए, पॉलिटिकल हाइबरनेशन में। ओनली पर्सनालिटी कैप्टन अमरिंदर सिंह। और उसके बाद जो सीक्वेंस में है वो भी सारे नेता हमारे उसमें हैं जो पंजाब को समझ सकते हैं, समझते हैं, राइट अप टू नवजोत सिद्धू जी तक सब। तो एक प्रकार से पंजाब के लोग बहुत संजीदा लोग हैं, वो सब चुनौतियों को समझते हैं। तो वो ये जानते हैं कि द इंटरेस्ट ऑफ द पंजाब, the interest of Punjab farmers, the interest of Punjabiyat and the interest of nation is only safe in the hands of Congress. If Congress is ruling Punjab, the nation and Punjab's interest will be safeguarded. ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆਸਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। हम तो हमारे जितने चमकीले चेहरे हैं सब अमरिंदर सिंह जी के साथ जो है हमारे चेहरे होंगे। जिन लोगों ने कांग्रेस को बनाने में योगदान दिया है वो चेहरे तो हम अपना व्यस्त सभी दिखाते हैं ना। ये हमारे जो जिन लोगों के नाम ले रहे हैं आप, ये हमारे व्यस्त दी व्यस्त हैं, तो इन सबको आगे रखा जाएगा। ਪਰ ਬੈਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। भाई मैं कह रहा हूँ ना, चीफ मिनिस्टर दी अभी कोई वैकेंसी तो है नहीं है, और फ्यूचर हमेशा रहता है। नरेंद्र जी जब चीफ मिनिस्टर बने तो मैंने फ्यूचर का रोल अदा किया, जबकि मेरी सादत में न मेरी सदारत में कांग्रेस सत्ता में आई थी। लेकिन एनीवे इट वाज अ कॉल ऑफ द टाइम कि नरेंद्र जी हमारी कमांड संभालें, उन्हें कमांड संभाली। तो ये क्या कॉल ऑफ द उस समय का क्या तकाजा है उसको देख करके पार्टी हाईकमांड निर्णय करेगी। और मैं इतना मैं कह सकता हूँ, वो निर्णय में जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह निर्णय लेने वालों में से कुछ में से एक होंगे। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आगे की जब भी हम सोचेंगे हमारे सामने सिद्धू का चेहरा जरूर होगा। ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋਗੇ, क्योंकि दोनों चीज़ों ਨੂੰ दोनों स्टेट ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ के? वहाँ के विषय में तो मैंने खुद ये निर्णय किया है कि चेहरा कोई नहीं, जो भी है हम जो चुनाव होंगे तब देखा जाएगा। लेकिन बाकी मैं क्या करूंगा उसके लिए मैं केवल इतना ही बता देता हूं कि चंडीगढ़ इज़ ओनली 3 hours अवे फ्रॉम उत्तराखंड। इन द मॉर्निंग
time I will devote in Uttarakhand and the evening in the Punjab, and sometime evening in the Punjab, morning in the Uttarakhand. तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात यह है कि उत्थे भी मैं हेमकुंड साहब, नानक मत्ता साहब, रीठा साहब को याद करूँगा, या जो है दुर्गाना मंदिर को याद करूँगा, उनको याद करूँगा, केदारनाथ जी को, और यहाँ भी वही करूँगा पंजाब में आकर के भी। यहाँ भी जो है हरमिंदर साहब को करूँगा, आनंदपुर साहब को करूँगा, फतेहगढ़ साहब को करूँगा। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? मैं जल्दी इधर ही जा रहा हूँ, कभी भी हो सकता है, क्योंकि दरबार साहब जाने की बात है, तो इसलिए मैं उसको अनाउंस करके नहीं जाना चाहता है, नहीं तो इट विल बिकम ए पॉलिटिकल प्रोग्राम। मैं वहाँ जाके मत्था टेकने जाना चाहता हूँ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੋਨੂ ਜਾਂਸਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने चढ़दी कला दी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे गल करने का मौका मिला, आपके ज़रिए पंजाब के लोगों को सत श्री अकाल कहने का मौका मिला। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।